Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for your different examination. So here we are with the new series which will be focusing on the bioinformatics, solely on bioinformatics. I will be like wait huh. I will be providing you the wholesome video and the most important questions that can be asked from this topic if you are preparing for DBT, ठीक है, or else for scientist C, which is going to be happened on 28th of June. The date is already out. You can check out on my community post. I have already provided the details. So अगर आप किसी भी examination को target कर रहे हैं in which bioinformatics is the syllabus, then this video is for you. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब करके ही जाना क्योंकि अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी. एंड डू हिट द लाइक बटन इफ़ यू फाइंड द कंटेंट यूजफुल. नाउ आई कैन बेट यू कि अगर आप जैसे जैसे हर पार्ट को देखते जाएंगे यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट हाउ यू कैन यूज बायो इन्फॉर्मेटिक्स. ठीक है, सी, so we will start from the very basic, very scratch, that what is bioinformatics, why do we need it, how it originated, what is the scopes, what are the goals, and what are the applications. So we gonna cover each and everything, right? So see, whenever we are doing biology, जब भी हम बायोलॉजी करते हैं या लेट से एक छोटा सा भी रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, whenever you are doing any kind of research, what do you generate? You generate data. That is the secondary thing, that your data is either good, satisfactory, or not satisfactory. So that is the another part. But whenever you are doing research, you are having some data. So in the modern biology, we daily, on a daily basis in biological sciences, we generate huge amount of data. For example, in the basic laboratory application like making serial dilutions, counting bacterial colonies, counting phage plaques, estimating trees and animals, everything has data. सब चीज़ में डेटा है, ठीक है. रॉ डेटा सबसे पहले होता है, देन व्हाट यू डू, यू एनालाइज इट, ठीक है, थ्रू सम स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स. सो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स आर व्हाट, मैथमेटिक्स हैं. मैथमेटिक्स है तो एल्गोरिदम चाहिए, एल्गोरिदम चाहिए तो कंप्यूटर्स चाहिए. So a human mind or a human brain cannot do without having sophisticated, अगर sophisticated ना भी तो कोई सिंपल सा भी हमें कोई डिवाइस चाहिए, कोई एल्गोरिदम चाहिए जो हमारे रेगुलरली जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होता है उसे एनालाइज तो करे ही करे, साथ में हमें इंटरप्रिटेट करके दे दे. ठीक है, सो वी आर यूजिंग बायो इन्फॉर्मेटिक्स and different computational methods to have like a clear understanding of whatever we are generating in biological research. ठीक है, जैसे ये फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल एंड एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थॉमस मॉर्गन, दोनों ने ही क्या किया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे. ठीक है, दे रिलाइड ऑन जेनेटिक वेरिएशन इन प्लांट्स एंड फ्रूट फ्लाइज. ठीक है, so they also have generated so much of data. So they have used different models, different algorithm for the calculation. So likewise nowadays every researcher is generating huge data. So how are they gonna analyze it? By the help of mathematical and computational methods, which has now become the integral part of biological research. ठीक है, इसके बिना आप कुछ सोच ही नहीं सकते. बिकॉज अगर आप मान लो कोई एक, ये जीनोम है, ठीक है, ये पूरा एक जीनोम है, ठीक है, लीनियर जीनोम है. अब इफ़ यू वांट टू हैव एक आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इतना है, ठीक है, इतने पार्ट का अगर आप सीक्वेंसिंग करोगे, सो यू विल बी गेटिंग सो मेनी सीक्वेंस एटीजीसी, एटीजीसी. So is this a useful data? Obviously no. Without analyzing, without interpreting any outcome, कोई inference निकालने बिना किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं है. हम हमेशा एक्सपेरिमेंट करते थे ना, स्कूल टाइम से क्या लिखते थे हम एम लिखते थे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट लिखते थे, ऑब्जर्वेशन लिखते थे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट एक साथ मिला के लिखते थे, एंड एक कॉलम होता था इंटरप्रिटेशन. ठीक है बच्चों, तो बिना इंटरप्रिटेशन के क्या किसी भी एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है? आपने ये जीन का सीक्वेंसिंग तो करा लिया, आपको स्ट्रेच तो मिल गया, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स का एटीजीसी, एटीजीसी अप टू सो लॉन्ग 1000, अगर ये बेस पेयर का है तो आपको इतना मिल गया. अगर इसको एनालाइज नहीं करोगे, ये नहीं देखोगे कि क्या कोई सिमिलैरिटी है,
देखो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। मान लो ये जीन 1 था, ठीक है, जीन 1 फ्रॉम इंडिविजुअल एक्स, ये निकल गया, ये 100 बेस पेयर का है। नाउ एक और ऐसा ह्यूमन आता है जिसके अंदर से आप वही जीन 1 निकालते हो लेकिन वाई इंडिविजुअल से। तो क्या कैसे पता चलेगा कि जीन 1 जो निकाले हो दो इंडिविजुअल से एक्स और वाई से, क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग क्या कोई फिनोटिपिक आउटकम आया है उससे या नहीं आया है। ठीक है, जीनोटिपिक वेरिएशन फिनोटिपिक वेरिएशन निकालोगे, क्या कोई मेजर डिफरेंस है, कितना परसेंट सिमिलैरिटी है, क्या और भी एग्जिस्टिंग लोग हैं जिनके पास ये डेटा है, तो वो जानने के लिए क्या लगेगा, डेटाबेस लगेगा। ठीक है, सो थ्रू दिस वे वी हैव डेवलप्ड दी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी टूल्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, इतना ओवरव्यू काफ़ी है। नाउ दिस इज द स्लाइड फ्रॉम वेयर यू कैन हैव क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि मार्गरेट ओकले डे हॉफ इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, now she is considered as the both mother and father of bioinformatics. She pioneered the application of computational methods to biology, created the first protein sequence database. ये आपको याद रखना है बच्चों, द फर्स्ट प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस जो है वो इन्होंने ही पाइनियर किया था, इन्होंने ही क्रिएट किया था, देयरफॉर इन्हें हम फादर ऑफ या मदर ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, शी ऑल्सो डेवलप द एटलस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर इन 1965। सो अब आ जाते हैं इस पे। नाउ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज व्हाट, इट इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ ही साथ इंटरप्रिटेशन भी आप करते हो द बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स का इंफॉर्मेशन। नाउ मैक्रोमोलिक्यूल के इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, आपका न्यूक्लिक एसिड भी आ जाएगा, ठीक है, आपका प्रोटीन भी आ जाएगा। तो मेनली जो डेटा जनरेट होता है बायोलॉजी में फ्रॉम डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to analyze them, to interpret them, and also to store them for future use. Suppose if I am working today on that gene, so after 2 years, 3 years, somebody will more work on that thing. So they also should know some reference, some template, some like database, library kind of thing. So on that note, database is created. So 1965, as I told, day of created the first protein sequence database and atlas of protein sequence and structure. ठीक है, so now early 1970s में क्या हुआ, the Brookhaven National Laboratory established the PDB. PDB क्या है, the largest protein data bank for 3D protein structures. You can get like 4 डिजिट का आईडी देता है हर प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अर्ली 1970s में ये हुआ, फिर धीरे 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 क्या हुआ, प्रोटीन स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आया, फर्स्ट सीक्वेंस अलाइनमेंट एल्गोरिदम आया। नाउ इट वाज इन 1980s creation of GenBank and fast search tools like FASTA and BLAST. Now if you will get one question from here that what are the different timeline, let me take the pen. सो यू शुड नो अबाउट दी फास्टा एंड दी ब्लास्ट। कब आए थे, 1980 में आए थे। ठीक है, लेट 1980 में क्या हुआ था, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एसेलरेटेड बायोइन्फॉर्मेटिक्स ग्रोथ। ये सारे टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो विलियम पियर्सन ने फास्टा बनाया था, ठीक है, एंड स्टीफन ने क्या बनाया था, ब्लास्ट बनाया था। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने कहा कि आई एम प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्क्रैच, आईसीएमआर दे रहे हो ये पूछा जाएगा, डीबीटी दे रहे हो ये पूछा जाएगा, साइंटिस्ट एग्जाम दे रहे हो ये पूछा जाएगा। सो डोंट इग्नोर ऑल ऑफ दीज। नाउ बायोइन्फॉर्मेटिक्स बिकम important due to the huge increase in genomic and biological data, as I explained earlier in the slide. So the field combines knowledge from mathematics, statistics, computer sciences, information technology and molecular biology. ये सब मिला के आपका बनता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, एल्गोरिदम बेस्ड जो आपके ह्यूज डेटाबेस डेटा जो जनरेट हो रहा है ईच डे, उसको एनालाइज करेगा एंड इंटरप्रिटेट करेगा, स्टोर करेगा, ताकि आगे भी आप उसका यूज़ कर सकें। ये मैंने बता दिया। नाउ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, ठीक है, कंबाइनिंग बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंसेस। तो ये तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है जो आप सभी जानते होंगे। सो इट इज़ फॉर स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल डेटा दैट कैन बी यूज्ड एट एनी टाइम, रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइक आज मैंने कोई डेटा स्टोर कर दिया, ठीक है, सबमिट कर दिया, सो आफ्टर 10 years आई विल बी एबल टू वॉच इट, यूज इट एंड सी इट। Data manipulation, like if I want to like if I have sequenced 2 genome, I want to merge it,
So that way data manipulation, distribution and analysis of biological information. So all these are objectives of this one. Now what kind of data, what kind of biological macromolecules are there? DNA, RNA, proteins. ठीक है. Now computers are essential because genomic data analysis is highly repetitive. So a human brain can do it? No, because our genome consists of the huge amount of repetitive data. You all are aware of this fact. So human brain cannot process this. For that we need some computers that are specialized in this particular task. नाउ दे आर मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि हम बिल्कुल भी समझ नहीं सकते हैं. ठीक है. सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स विल हेल्प इन जीनोम एनालिसिस. इंफॉर्मेशन माइनिंग, कोई एक्स है, नॉवेल है, आप डेटाबेस में सर्च करोगे क्या एग्जिस्टिंग है या नहीं है, नहीं है तो ये नॉवेल हो जाता है. ठीक है. नॉलेज बिल्डिंग फ्रॉम बायोलॉजिकल डेटा. ठीक. ना व्हाट इज द गोल, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स? जो चीज़ें मैंने अभी बताई वही है. बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालाइजेस व्हाट? द मॉलिक्यूलर सीक्वेंस डेटा, द स्ट्रक्चरल डेटा. नाउ इट विल प्रोवाइड यू नी बायोलॉजिकल इनसाइट्स एंड अ ग्लोबल व्यू ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज. ठीक है. डीएनए से आरएनए होता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, सेंट्रल डोगमा. तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इसी सेंट्रल डोगमा पे बेस्ड है. ठीक है. तो गोल क्या है? Analyzing biological sequence and structure help in understanding cellular functions and solving biological problem. बायोइन्फॉर्मेटिक्स का मेन गोल यही है कि जो डेटा जनरेट हो रहा है उसको यूज करके एप्लीकेशन निकाला जाए उसका. जैसे अगर आपने जीन का एक्स का सीक्वेंसिंग स्ट्रेच जमा कर दिया. ठीक है. अब सम सॉर्ट ऑफ म्यूटेशन उसमें होता है, जैसे ए का टी हो जाता है. ठीक है. ट्रांजिशन हो गया तो क्या होगा उसकी वजह से? क्या फिनोटिपिक कुछ चेंजेस आएंगे उस इंडिविजुअल में. सो उसका एक और ये म्यूटेटेड वर्जन ऑफ जीन एक्स भी आप सबमिट कर दो. उसके अलावा अगर मान लो कि ये पूरा का पूरा ये डिलीट ही हो जाता है या इसकी जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूटेड आ जाता है तो क्या होगा? तो इस तरह से इंफॉर्मेशन निकालना है कि अगर एक इंसान के पास वो जीन है, एक इंसान के पास वो जीन नहीं है, एक इंसान के पास वो जीन तो है लेकिन उसमें सम स्ट्रेच जो है वो मॉडिफाई हो गया. तो इस तरह से हम यूज कर सके ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज, एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस, सो एज टू सॉल्व दी बेसिक जो जेनेटिक प्रॉब्लम है, डिफेक्ट्स है, जो भी चीज़ें हैं वो सॉल्व किया जा सके. नाउ बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जो मेजर सब फील्ड्स हैं वो दो हैं. एक तो कंप्यूटेशनल टूल्स हैं, एक डेटाबेस है. विदाउट डेटाबेस बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज लाइक मतलब अ पेन विदाउट इंक. ठीक है. यही बोल सकती हूँ मैं. तो कंप्यूटेशनल टूल्स तो है ही हैं जो एनालिसिस के चाहिए, बट द मेजर थिंग इज डेटाबेस. Without the database you will not be able to search anything, to store anything, to deposit anything. So application of these tools generate biological knowledge, as I told in the previous slide. So tool development in bioinformatics includes development of software for what? Sequence analysis, structural analysis and functional analysis, right? So it also includes the construction of biological databases and the database curation and maintenance. तो देखो टूल डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें आएंगी, यानी बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है वो कंप्यूटेशनल टूल के साथ ही साथ डेटाबेस भी रखता है. कंप्यूटेशनल टूल किस लिए होगा? आपने एक सीक्वेंस जमा किया तो सीक्वेंस क्या होगा? एनालाइज होगा. स्ट्रक्चर डिपॉजिट किया तो स्ट्रक्चर का एनालिसिस होगा. क्या भाई इस टाइप का और कोई स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, इसका फंक्शन क्या है, इसमें डोमेन्स क्या है, कितने फोल्ड्स है, कितने टर्न्स है, कितने बीटा शीट है, कितने अल्फा हेलिक्सेस हैं, ये सारी चीज़ें, फंक्शन क्या है इसका. तो वो सब एनालाइज करके वो डेटाबेस बनाएगा. जैसे एक्स वाई जेड एक ही टाइप के फंक्शन वाले हैं तो उनका एक डेटाबेस बना देगा. डेटाबेस क्यूरेशन एंड मेंटेनेंस. मेंटेनेंस मतलब हर बार वो अपडेट होता है. जितने रिसर्चर रिसर्च करते जाएंगे उतना वो डिपॉजिट होते जाएगा. कोई भी चीज़ अगर लाइब्रेरी है तो अपडेट नहीं है तो कोई मतलब का नहीं है. ठीक है. सो मेजर एरियाज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक रिसर्च इंक्लूड मॉलिक्यूलर सीक्वेंस एनालिसिस, लाइक सीक्वेंस अलाइनमेंट आप करोगे, सीक्वेंस डेटाबेस सर्च करोगे, व्हाट इज द मोटिव एंड पैटर्न, व्हाट आर द जीन एंड प्रमोटर आइडेंटिफिकेशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रिकंस्ट्रक्शन, फाइलोजेनेटिक ट्री आप बनाओगे. ठीक है. जो ऐसे ऐसे बनाते हो तो ये सारी चीज़ें भी किससे बनती हैं? इसी से बनती हैं. जीनोम असेंबली आप करोगे, कंपैरिजन आप करोगे. ठीक है. ह्यूज जीनोम के आपने स्प्लिट करके सेक्शंस में उसको सीक्वेंस कराया तो आप इसको कॉन्टेक्ट बनाओगे. सो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? मॉलिक्यूलर सीक्वेंस एनालिसिस में. अब सीक्वेंस का एनालिसिस हुआ है, वैसे स्ट्रक्चर का भी एनालिसिस होगा. स्ट्रक्चर किसका होगा? प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा. न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रक्चर कंपैरिजन एंड क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन. आप सीक्वेंस से स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन भी कर सकते हो.
ठीक है। नाउ मॉलिक्यूलर फंक्शन एनालिसिस, जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग, प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन, प्रोटीन सबसेल्यूलर लोकलाइजेशन, मेटाबॉलिक पाथवे का भी एक डेटाबेस है। नाउ बायोलॉजिकल सिमुलेशन स्टडीज, ये सारी चीज़ें often creates new challenges leading to development of improved computational tools. Regularly ये सारे जो जितने भी bioinformaticians हैं, ठीक है, all the bioinformaticians are working day and night to improve all these softwares. So आप अगर बहुत पहले के हैं, जैसे जब हम बात कर रहे हैं 1980s से जेन बैंक और ये सब आना शुरू हुआ से लेके अभी क्या चल रहा है 2026, you can see the tremendous advancement in the like bioinformatics field, in the database, in the different computational biology tools, because all the bioinformaticians are doing the task of updating, upgrading, modifying it, मेंटेनेंस हो रहा है रेगुलरली, ताकि जो भी आपका पर्पस है वो एफिशिएंटली आप उसे यूज कर पाएं. नाउ दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ लाइक स्ट्रक्चर एनालिसिस. अगर आपको करना है, देखो मेजर एप्लीकेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, मैंने यहाँ पे बता दिया, स्ट्रक्चर एनालिसिस, सीक्वेंस एनालिसिस, फंक्शन एनालिसिस. ये ब्यूटीफुल सा डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है. अब देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए. तीन इसके एस्पेक्ट्स हैं एप्लीकेशन के, स्ट्रक्चर एनालिसिस, सीक्वेंस एनालिसिस एंड फंक्शन एनालिसिस. सो जो स्ट्रक्चर एनालिसिस है दैट इज फॉर न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, protein structure prediction, protein structure classification and structure comparison. Apart from that, if you want to analyze the sequence, genome comparison करना है, phylogenetic tree की कौन किसका ancestor है, क्या same ही group के हैं, क्या same ही clade के हैं, gene and promoter prediction, motif, sequence alignment, multiple sequence alignment करना हो, so for that sequence analysis portal is there. फंक्शन एनालिसिस, मेटाबॉलिक पाथवे मॉडलिंग, ठीक है, कौन सा जीन किस मेटाबॉलिक पाथवे का पार्ट है, कितने मेटाबॉलिक पाथवे के डेटाबेस हैं, आई विल लाइक प्रोवाइड यू इन अपकमिंग वीडियोस. जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग, प्रोटीन इंटरैक्शन प्रेडिक्शन, प्रोटीन सबसेल्युलर लोकलाइजेशन प्रेडिक्शन, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स लाइक स्ट्रक्चर एनालिसिस, सीक्वेंस एनालिसिस, फंक्शन एनालिसिस. सो अकॉर्डिंगली सो मेनी सॉफ्टवेयर आर देयर, वेब बेस्ड टूल्स हैं, वेब बेस्ड सर्वर्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है. उसके अलावा डेटाबेस कंस्ट्रक्शन एंड क्यूरेशन, कोई भी फाइंडिंग आ जाए, देखो कैसे होता है, रॉ डेटा आप डालते हो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, ठीक है, कुछ फाइंडिंग्स आती हैं, उस फाइंडिंग्स का लाइब्रेरी या डेटाबेस में आप स्टोर करते हो. इसी मेन प्रिंसिपल पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स काम करता है. सो दिस वाज द पार्ट 1. आई होप यू लाइक्ड इट. तो चलो कुछ क्वेश्चन करके फिर ये सेशन एंड करते हैं. Which two major subfields together constitute bioinformatics? So I have told you genetics and microbiology, no. Software development and database application. Is it just software development and database application? No. Computational tool development and application of biological data analysis. Yes. मैंने बताया था दो major field है bioinformatics के, tool development and application of biological data analysis. So इसका आंसर हो गया C. Which of the following is included in molecular sequence analysis? Protein localization, sequence alignment, metabolic pathway, protein structure. तो यहाँ पे देखो molecular में क्या क्या आ रहा है, structure prediction आ रहा है, स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, ये आ रहा है. उसके अलावा जो मेटाबॉलिक पाथवे वो तो फंक्शन में आ जाएगा. सो सीक्वेंस अलाइनमेंट इज द राइट आंसर. फास्टा एंड ब्लास्ट आर मेनली यूज्ड फॉर प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, सीक्वेंस डेटाबेस सर्चिंग, जीन क्लोनिंग और मेटाबॉलिक पाथवे. सो फास्टा एंड ब्लास्टर किसके पार्ट है, किसके पार्ट है, इसके पार्ट है, सीक्वेंस डेटाबेस सर्च के. जो रॉ डेटा आप डालते हो, एटीजीसी जो भी आपका सीक्वेंस है, दैट इज फास्टा, ठीक है. वो अगर किसी सिमिलैरिटी, कोई एक सिमिलर हिट मिलता है तो वो क्या होता है, वो आप ब्लास्ट जब करते हो, ठीक है, फास्टा को ब्लास्ट करते हो तो आपको हिट मिलता है, ठीक. विच एरिया ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंक्लूड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन एंड कंपैरिजन. तो स्ट्रक्चर एनालिसिस करोगे तभी तो प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन एंड कंपैरिजन कर पाओगे. नाउ जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग एंड प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन प्रेडिक्शन बिलोंग टू फंक्शनल एनालिसिस. देखो ये डायग्राम पे ही सारे क्वेश्चन बेस्ड थे. फंक्शन में क्या है, सीक्वेंस में क्या है, स्ट्रक्चर में क्या है, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ यू कैन सी कि ये जो है वो स्टैंडर्ड बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बुक से है, ठीक है, सारी जो जो भी चीज़ें मैं पढ़ाती हूँ, एंड आई मेक इट ब्यूटिफुली. सो आप मेरे एफर्ट्स देख सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड एट द सेम टाइम डू लाइक इट एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. आई विल बी हैप्पी. सो दिस वॉज ऑल फॉर पार्ट 1. Stay tuned for the part 2 and thank you so much for watching.